Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tatavatu ativarya surashariddham Saubhiramasyan kuru jangalamsha Kalena tavad yamunamupetya Tatrodhavam bhagavatam dadasha. Thereafter passed through very wealthy provinces like Surat, Sauvira, Matsya and through western India known as Kurujangala. At last he reached the bank of river Yamuna where he happened to meet Uddhava, the great devotee of Lord Krishna. So here is Vidura. Vidura is himself a Devata, he is Yamaraj. And he is not going to waste his time to go to other Devata temples. There is no need for him. You see that? Many times people ask this question, why in ISKCON you only worship Krishna and Vishnu forms? You don't worship Kartikeya, you don't worship Devi Devatas. Why we should worship? The point is, what do we want? सबसे most important point is, what do we want? Otherwise, very difficult to argue with these people. Correct? First question is, what do I want? If I want as spirit soul, we are not the body, we are spirit soul, come to the platform of liberated activities of the soul. They're called Chaitanya Charita Amrita. That's the meaning of the Chaitanya Charita Amrita. The soul, when it comes to the liberated position, what are the activities of the soul? Chaitanya refers to the soul, correct? Charitra, the activity in Amrita, in liberated position. So in a liberated position, the soul does not end or does not become just one with I am that, Tattvamasi, Tattvamasi, Tattvamasi. No. Just like when I am sick, I have no activities, but I am healthy, I have activities. Correct? You're in a hospital, you are sick, there are no activities. When healthy, there are wonderful activities. So generally people's understanding of spiritualism is ending of material activities. More or less, it is frustration. I try to enjoy material world, I try to enjoy material relationships. They're all illusory at the end of it. So the person wants to end this whole thing. That's a general understanding. And that is considered salvation or moksha. Activities begin after liberation. Real activities begin after liberation. And that is to relate with the Lord in pure devotion service. Just like celebrated example of Hanuman. He is a liberated platform. He is not Baddha Jiva. And is enjoying service to Lord Rama. That's people know in India. The same way, the devotees in the spiritual world, which are innumerable, are enjoying pure devotion service to the Lord. Now, if you want to achieve that position, that coveted position, then Devi Devata will not be able to help you. Because they themselves are desiring that. They themselves are also in a conditioned situation in the material world and desiring to go to the spiritual world to serve the Lord. So they may not be in a position to help you. So therefore you have to go to the Lord. Lord Shiva himself says, Mrityu pradada sarvesham, Mukti pradada sarvesham, Vishnu emana samshaya. Mukti only Vishnu can give. Devi Devatas are Iha Devataha. Bhagavad Gita says they are within this material world. True, Shiva's position is very unique. He is not like an ordinary Jiva. Very difficult to understand his position. But he is not Vishnu definitely. He is called like milk turned into curd. Lord Vishnu wants to interact with the material world. He interacts through Lord Shiva. One transformation of himself, which is called milk turned into curd. It's not milk, but it is also milk. Okay? So this is called Shiva Tattva. Jiva Tattva, Vishnu Tattva, Shiva Tattva.
Shakti Tattva. Generally these four are different tattvas. So now you have a desire to offer devotion service to the Lord in the liberated position, you have to go to only Vishnu. The Devatas, they can make your life comfortable in this world. So those, because they are the administrators here, those people who are focused on being comfortable in this world, they worship different Devatas. And different Devatas have been given power to give different benedictions. They are like appointment letter from the Supreme Lord Vishnu. Okay? That is why the Devatas will do this job. Bhagavatam, as we were reading yesterday, we were reading the first verse, which is the last work of Veda Vyasa. He says something very interesting. The Bhagavatam says that the definition of God should not be controller, rather the absolute truth. Because controller, we will get bewildered easily. Just like in the city there is, therefore most of the people who worship Devi Devatas, they in their puja room also are any powerful person also. Because he is looking only for some material benediction. उसको क्या चाहिए? उसको कुछ आशीर्वाद चाहिए. अगर देवी देवता नहीं देंगे, कोई आदमी दे रहा है, वो उसका ही पूजा कर लेगा. Correct? Any stone he worship, he gets anything. Basically he is looking for his material enjoyment. उसको इंद्रिय भोग की कुत्ते बिल्ले की तरह लालसा है. कोई भी आशीर्वाद दे दे उसको, उसका पूजा करने के लिए रेडी है. ठीक है? उसका आध्यात्मिक जीवन बहुत सीमित है. नास्तिक आदमी से तो अच्छा है, चलो किसी को झुकता है, लेकिन क्या झुकता है, किसको झुकता है, क्यों झुकता है, दैट इज नॉट डेवलप्ड. अ डिवोटी ऑन द अदर हैंड, वो भगवान से कुछ मांगने नहीं जाता है, वो खाली भगवान की सेवा चाहता है और भगवान पे छोड़ देता है. आप मेरे को वैकुंठ धाम ले जाओ या इसी लोक में रखो, कहीं रखो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. करेक्ट? बट जनरली लोग एलिमेंट दूसरा है. नास्तिक लोग इंद्रिय भोग करते हैं भगवान को भूल के, और ये सो कॉल्ड आस्तिक लोग, ये भक्त नहीं है, एक्चुअली कपटी हैं. ये इसको जैसे भागवत बोलते हैं धर्म प्रोजिता कैतव, इसको कैतव धर्म बोलते हैं, चीटिंग रिलीजन. ये भौतिक आनंद करते हैं भगवान के आशीर्वाद से. एक भौतिक आनंद करता है भगवान को भूल के, एक भौतिक आनंद करते हैं भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन लक्ष्य भौतिक आनंद. जो भगवान के भूल के भौतिक आनंद करता है, उसमें भी कुछ लोग होंगे जो थोड़ा चलो सभ्य पुरुष हैं, असभ्य पुरुष हैं. ठीक है? लेकिन जो भगवान के आशीर्वाद से करता है जनरली सभ्य होता है, वो शास्त्र के नियम नहीं तोड़ता है, प्रवृत्ति मार्ग. लेकिन गीता एंड भागवत बोल रहे हैं निवृत्ति मार्ग, बिकॉज हमको भगवत धाम ले जाना चाहते हैं. उनका लक्ष्य क्या है? आपको भगवत धाम ले जाना, भगवान के धाम ले जाना. तो अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो देवी देवता का पूजा से आपको कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं. जैसे जेल में आपको हो सकता है अच्छा खाना मिल जाए, ये हो जाए, लेकिन जेल से छुटकारा जेलर नहीं दे सकता, गवर्नमेंट से ऑर्डर आना पड़ता है. करेक्ट? द सेम वे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड. अदर मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल हैव कि वेदांता सेज वी वर्शिप द देवी देवतास. वेदांत का मतलब तो मालूम नहीं है आपको, क्यों वेदांत बोलते हैं? वेद का मतलब नॉलेज. वेदांत मीन्स एंड ऑफ नॉलेज. ये वेदांत शब्द आता है वेदांत सूत्र के अनुसार. ये नहीं कि कुछ लोगों ने एक सोसाइटी बनाया वेदांत सोसाइटी. आप कुछ भी नाम दे दो, पहले मतलब तो समझे. वेद के पूरे सार को लिखा गया है वेदांत सूत्र, है ना. एंड वेदांत सूत्र को ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं. उसमें है करीब 550 ऑड, कुछ आचार्य लोग बोलते हैं 552, कुछ बोलते हैं 555 सूत्र हैं. जैसे आपके फिजिक्स में सब कुछ सारांश में लिखा जाता है, वेदांत में भी पूरे वेद का ज्ञान वेद व्यास ने सारांश में लिखा है. अगर कोई भी आदमी कुछ भी तत्व देता है, फिलॉसफी देता है, उसको ये दिखाना क्या कि वेदांत सूत्र को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो. मजाक ये है, ये अपने को वेदांत सोसाइटी बोलते हैं, इनको वेदांत सूत्र का मतलब तक नहीं मालूम. मतलब तो छोड़ो, ये इनकी सोसाइटी किसी भाष्य को फॉलो नहीं कर रही. नाम नहीं लेना चाहते, जो वेदांत सोसाइटी के नाम से चल रहे हैं आजकल, उनको किसी वेदांत भाष्य को फॉलो नहीं कर रहे, ना ही उनका अपना भाष्य. वेदांत के भाष्य मूलतः 4 हैं. मध्वाचार्य का दिया हुआ, रामानुजाचार्य का दिया हुआ, विष्णु स्वामी का दिया हुआ, निम्बार्क स्वामी, जो भी प्रोमिनेंट आचार्य हुए हैं, अपना फिलॉसफी देने से पहले समाज में भाष्य लिखे हैं.
इस्कॉन में हम लोग एक्चुअली भागवत को ही फॉलो करते हैं, जो पहला वेदांत का भाष्य है जो वेद व्यास ने खुद लिखा है। बाद में कभी एक ज़रूरत आई थी तो एक और भाष्य लिखा गया, उसका नाम क्या है? गोविंद भाष्य। तो वेदांत की बात करते हैं या तो वेदांत सूत्र की बात करिए या उनके भाष्य की बात करिए, करेक्ट? उसको बोलते हैं वेदांत। खाली वेदांत सोसाइटी लिखने से कोई मतलब नहीं है। प्रस्थान त्रय, कोई भी आपको फिलॉसफी प्रेजेंट करनी है, आपको दिखाना पड़ता है कि वेदांत को तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है, करेक्ट? तो वेदांत का जो अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन है खुद वेदव्यास जी ने भागवत के रूप में दिया है। उसको नंबर 1 भाष्य माना जाता है। और भागवत का शुरुआत का पहला श्लोक क्या है? जन्माद्यस्यतः तेषु विघ्नः स्वराट। जो पहला वेदांत का सूत्र जन्मादि अस्यतः, इन्वोकेशन वेदांत का क्या है? अथात ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य का जीवन है, मेरे को ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, अल्टीमेट ट्रुथ का। और अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? जन्मादि अस्यतः, एक स्रोत जिससे सब कुछ आया गया है। ऐसे करके वेदांत में तरह तरह के स्रोत हैं। आनंदमयोभ्यासात्, वो भी दूसरा सूत्र है, ठीक है? तो इस तरह तरह से समझाया गया है। तो इस चीज़ को समझना में हमको समझ आएगा वेदांत क्या है। तो वेदांत का अल्टीमेट भाष्य श्रीमद् भागवतम। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जब विदुर, जो खुद यमराज से पहले विदुर के रूप में अवतार में कृष्ण की लीला में आए थे, वो जब तीर्थ यात्रा के दर्शन में जाते हैं, खाली विष्णु के टेम्पल ही दिख रहे हैं। भागवत में भी लिखा है, 2nd कैंटो में हमने पढ़ा था, ये तो 3रा कैंटो है। सो वेदांत का जो भाष्य श्रीमद् भागवतम में शुरुआती पहला स्रोत क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेव, कृष्ण की पूजा कर रहा है। और इसमें लिखा है 2nd कैंटो में, श्रीधर प्लीज डोंट डिस्टर्ब, 2nd कैंटो में लिखा है कि आप डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बुद्धि है, अकाम सर्वो काम व मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। हाँ, अगर आपको बुद्धि है तो डायरेक्टली विष्णु की सेवा करो। अकाम, आपका कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। सर्व काम, आपको सारे तरह की भौतिक इच्छा है। मोक्ष काम, आपको मोक्ष पाना है दुनिया से, कोई भी आपकी इच्छा हो। जनरली मोक्ष पाना होता है वो लोगों को जो अद्वैतवादी होते हैं, जिनको भगवान का अस्तित्व है, उनका पुरुष है, वो व्यक्ति हैं, उनका रूप है। लेकिन कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, तत्वमसी में ही फंसे रहते हैं, मैं वो हूँ। लेकिन भगवान का ज्ञान पूर्ण नहीं है उनके पास, अपूर्ण ज्ञान है, इसलिए वो लोग मोक्ष चाहते हैं, ठीक है? उनको मोक्ष में भी 5 तरह के मोक्ष होते हैं मालूम नहीं है, खाली उनको सायुज्य मुक्ति मालूम है, कैवल्य, है ना? उनको सारूप्या, सामीप्या, साष्टि, सारूप्या, सामीप्या, सालोक्या, साष्टि एंड सारूप्या। सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टि, ये 4 उसके ऊपर है। मोक्ष वो मालूम नहीं है, खाली उनको सायुज्य मुक्ति मालूम है। मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष का मतलब मैं खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। दैट इज फ्रस्ट्रेशन, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड इज भगवान की जाके सेवा करो। और कपिल मुनि बोलते हैं 3rd कैंटो के पढ़ रहे हैं एंड में, मेरे भक्तों तो ये 5, उनको तो कोई मोक्ष ही नहीं चाहिए, उनको मेरी सेवा चाहिए। दैट इज द हाईएस्ट, द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ शुद्ध भक्ति, कि दे डोंट वांट एनीथिंग, वो जस्ट भगवान की सेवा करना चाहते हैं। दैट इज द हाईएस्ट। उनको कोई अपना पर्सनल, मोक्षकामी को भी कुछ चाहिए, है ना? सर्वकामी को भी कुछ चाहिए। भक्त होता है अकामी, उसको कुछ नहीं चाहिए। अकाम सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र मतलब फुल एंथुजियाज्म से आप भगवान विष्णु की ही सेवा करो, वो सबसे अच्छा है, बिकॉज वो सब कुछ दे सकते हैं आपको। देवी देवता जो भी देते हैं, एक तो चीज़ वो टेम्पररी होता है ना? यही तो हम शास्त्र समझाया गया भगवद गीता में। क्या श्लोक है? अंतवंत फलम तेषा तद्भवति अल्पमेधसाम। इसलिए तो कृष्णा ने वो गोवर्धन का लीला भी दिया था, ये समझाने के लिए कि देवी देवता की पूजा की जरूरत नहीं है। क्यों उठाया गोवर्धन? इंदिरा को इग्नोर करो, करेक्ट? ऐसा नहीं है कि देवी देवता की पूजा शास्त्र में रिजेक्ट करी गई है, नहीं, कर सकते हैं, बट वो विष्णु की सेवा के बराबर नहीं ला सकते। आप विष्णु के भक्त के पास जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप बहुत लोग आते हैं ना इस्कॉन में, आप लोग विष्णु की सेवा क्यों करते हैं? भाई क्या बोल रहे हैं आप? हमको क्या पूछ रहे हो?
आप अपने को पूछो, आप क्यों देवी देवता की पूजा कर रहे हो? दैट मीन्स आपको काम है सत्य हित ज्ञान यजंते अन्य देवता, कृष्ण जी बोलते हैं जिसको इंद्रिय भोग की लालसा होती है वही देवी देवता के पास जाता है, क्योंकि वो कुछ और दे ही नहीं सकते आपको। सुख शांति भगवान का सेवा का आनंद तो उनके पास देने का हक नहीं है, वो तो खाली विष्णु देते हैं या विष्णु के शुद्ध भक्त। ठीक है, जनरली देवी देवता ही भगवान के बड़े भक्त हैं, लेकिन उनका रोल इस दुनिया में ये जनरली मटेरियल कोई पर्पस से आए उसको सॉल्व कर दो, उनका वो डिपार्टमेंट का रोल है। जैसे आपको पानी चाहिए, पानी के डिपार्टमेंट में जाके आप अपना पानी ले आओ बस। बट आप डायरेक्टली विष्णु की अगर सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली देवी देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं। So this principle should be very much understood, and generally society mein there is no knowledge of this. So Vidura is actually going to different holy places, and all places he is seeing now. What is seeing? Vishnu ke 4 weapon hai. What is most important weapon? Chakra. And Krishna held only mostly chakra. There were some instances where Krishna held other weapons, but mostly chakra. And in the temples, therefore, chakra is put on the top to show the control of the Lord everywhere. कृष्णा पूरे चक्रा से सब कंट्रोल करते हैं। That is said, when राहु केतु गड़बड़ करने लगते हैं तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाता है घूमते घूमते। It's a devotee of the Lord. कौन सा एक था? He came to attack and Krishna sent Sudarshana to take care. Krishna was playing chess with his friends. Chess था, पुराना गेम है, ये नया गेम नहीं है। He was playing some sports, sitting and playing some sports with his devotees, and बोला अरे भयंकर दानव आ गया है। So Krishna told Sudarshana, take care. He went, killed the demon, and he went to the place where the demon was. Somebody did a homa yagna. Kashi, whole Kashi was burned. Somebody did a homa yagna. Who was that person? To kill Krishna. He created a demon. So the demon started coming and started disturbing Dwaraka. So Krishna told a Chakra. Chakra is a devotee actually. So powerful. He is more powerful than sun planet. The power he has is much more. It went and first killed the demon and went to the place where the demon was created. And all the people who were doing puja, homa, who created that tantra, he killed all of them also and burned the whole city also. That is Sudarshana, very very powerful weapon of the Lord. Okay? So therefore temple के top में Sudarshana to show actually Krishna is controlling the whole world. हमको दिखता नहीं है. Even now, sometimes we cannot understand. इधर इतना लोग मर गया, इधर इतना बच्चा मर गया, इधर ये हो गया, वो हो गया. People feel very disturbed. They feel as if nobody is in control and people can do anything they want. ऐसा लगता है ना कभी कभी. कोई कुछ कंट्रोल में नहीं है, जिसको मना रहा है जो कर रहा है. ऐसा नहीं है. सुदर्शना टोटल कंट्रोल में घूम रहा है. टोटल कंट्रोल में घूम रहा है. इसलिए आपको अगर प्रॉब्लम होती है, अगर आप सो गए, सो और नरक जाओ. आई रिमेंबर वी आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, एंड जनरली ट्रेन में क्या होता है, लोग सोए रहते हैं, उठते हैं, थोड़ा खाए, फिर सो जाते हैं. तो वन डिवोटी वाज बिजी, हाँ जा सो और नरक जा, सीधा नरक जा. मनुष्य जीवन सोने के लिए नहीं है. मनुष्य जीवन है कि वी प्रिपेयर अवर सेल्फ. इसलिए सोने के लिए दुनिया में पैदा नहीं हुए. वी शुड प्रिपेयर अवर सेल्फ so that we can go back and relish. We were reading Bhagavatam first chapter yesterday, Bhagavatam studies. Aho bhuvi rasika bhuvi bhavuka, Prabhu he explained long. Nigama kalpataror galitam phalam sukhamakad amrit davya samyutam. ये नेक्टर है. So the Bhagavatam has a rasa. भक्ति का जो रस है इसमें, that we should get used to drinking. Pervertly, these rasas are available in the society. Shota Vyadini Rajendra. Therefore, we are stuck. Shota Vyadini Rajendra. We are stuck to so many things. Ninam Shantim Sahasashaha. Thousands of things here. Apashatam Adhutatam Griheshu Grihe Vedina. Because we do not know the ultimate goal of life, we are stuck to various kind of rasas in this world. Apashatam. And we do not know the goal of life. Okay? But if we come to the real rasa, and we should cultivate for our own good, we should cultivate this taste. हमको ये टेस्ट कल्टिवेट करना चाहिए. भगवान के नाम जप का रस कल्टिवेट करना. भागवत अभी क्या, अभी रस क्यों नहीं है? क्या एग्जाम्पल दिया? जॉन्डिस का पेशेंट. जॉन्डिस का पेशेंट जब शुगर केन का जूस लेता है तो उसको कोई टेस्ट नहीं आता. तो जॉन्डिस का विकारी ऐसा होता है. लेकिन वही शुगर केन का जूस, उसको गन्ने का रस
बहुत जब दवा बीमारी ठीक हो जाती है, एक बहुत ही आनंदमय बन जाता है, नेक्टर बन जाता है। तो सेम वे जब हम भक्ति का मार्ग लेते हैं और ये रस को चखने का कोशिश करते हैं हरि नाम के थ्रू या भागवत के थ्रू, शुरू में कोई रस नहीं होता, करेक्ट, लेकिन अंत में यही सबसे बड़ा रस बन जाता है। लेकिन लगाते रहे, बिकॉज नाम जब करते हैं अभी नामाभास और नाम अपराध होता है। भागवत भी पढ़ते हैं, अभी हम लोग रेस्पेक्ट से नहीं पढ़ रहे, इसलिए उसका नेक्टर नहीं आता। जैसे हमारा एटीट्यूड डिवोशनल स्पिरिट रहेगा, रेस्पेक्ट रहेगा, ये भागवत एंड नाम में हमको बहुत रस मिलेगा। तो विदुर महान भक्त हैं, वो भी वृंदावन जाते हैं, हम भी वृंदावन जाते हैं। वो नेक्टर में हम ठीक है, हम पवित्र होके आ जाते हैं, ठीक है। फायदा तो है धाम को जाके, ऐसा नहीं है, फायदा ही फायदा है, लेकिन नेक्टर में नहीं है, वो तो अलग चीज़ है। विदुर का चीज़ अलग है, हिज पोजीशन इज डिफरेंट। महान भक्त हैं भगवान के, मैनी टाइम कृष्णा पर्सनली उनसे सेवा स्वीकार किया। He has felt very happy. It's a great fortunate position, and he is meeting very, very fortunate devotee. What is his name? Uddhava. And then Bhagavatam will now discuss their meeting. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,